मैं वेंड्रिला आपका स्वागत करती हूँ इन अनदर एपिसोड ऑफ द प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात एंड इनिशिएटिव बाय जीएफएस रियल्टर्स एंड खबर समय, एक ऐसा शो जिसमें हम बात करते हैं अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट और साथ ही में आपको बताते हैं अबाउट द हॉट प्रॉपर्टीज अवेलेबल इन द रीजन। और हर एक एपिसोड में आपके लिए रहता है एक खास लोकेशन जिससे रिलेटेड हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मगर आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। आज हम कोई लोकेशन नहीं, आज हम बात करेंगे अबाउट द इश्यूज ऑफ रियल एस्टेट मार्केट इन द करंट टाइम्स। और हमारे बीच आ रहे कुछ एमिनेंट गेस्ट जिनके साथ हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो विदाउट फर्दर ado, लेट्स बिगिन विद टुडेज एपिसोड ऑफ द प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात। Starting with the property news, हर हफ्ते की तरह देवाशीष भट्टाचार्य, who is the senior general manager of JFS Realtors, is here with us. Welcome you, sir. Thank you, Lila. So please tell us about the current affairs of the real estate market. Yeah. Hi viewers, I'm sure all of you are anxiously waiting for the news section of this episode. चलिए अच्छी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। The very good news comes from International Monetary Fund. They have declared that India has managed very well during this pandemic situation. The consequences is economic revival in a pace that is not more than the expectations, resulting in the boom in real estate market. There is a very good news comes out from IMF point of view. The faster the recovery revival, the better the scenario of real estate. That is good news comes out from these episodes. Second good news are that Siliguri has witnessed a good amount of that is customer influx during last month compared to the earlier. With the vaccine on the way, real estate market also surged all-time high across the country. That is another good news. जैसे जैसे अभी वैक्सीन आ जाएंगे, इनफैक्ट आ गया है वैक्सीन इन द मार्केट में, सो नॉर्मलसी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो इसी से रियल एस्टेट मार्केट थोड़ा रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्स अभी तक बहुत अच्छा आ रहा है। इंद्रिला, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव सीन द ह्यूज सर्ज इन कस्टमर इनफ्लक्स। आंसर स्पेसिफिकली, जैसे कि आपने सिलीगुड़ी की बात की, तो स्पेसिफिकली सिलीगुड़ी में इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट व्हाट आर द डेवलपमेंट्स? द डेवलपमेंट इज दैट द नंबर ऑफ लीड्स, हम लोग लीड्स कहते हैं जो कस्टमर होते हैं, तो लीड्स इज वेरी हाई इन नंबर्स nowadays. Recently we have conducted a fair that is called it trade fair in Namchi and Gangtok also. We have witnessed a very good amount of customer flow and inquiries that reflects the normalcy has returned back, ensures surge in properties both in ready to move as well as in under construction properties also. That is another that is good news from Siligurian point of view. और सर अगर जनरल इम्पैक्ट की बात की जाए तो उसके बारे में डू वी हैव एनी न्यूज़ रिगार्ड्स टू दैट? ये तो गई इंद्रिला, हम लोग बोला है तो बहुत अच्छा न्यूज़ है। अभी इन्फ्लक्स अच्छा आ रहा है कस्टमर का। द मटेरियल इट विल बी मटेरियलाइज अनलेस एंड अनटिल द स्टॉक इज सफिशिएंट. But with the increase in customers flow, Siliguri may face a crisis. What we are that is apprehending, crisis आ सकता है in ready to stock properties में. But the good news is that many under construction properties has launched in recent past, so it will combat the crisis also at the same time. It has launched very the recent past. Number of that is constructions is coming out. Number of projects very well that is renowned project has comes out during the last 2-3 months, which will definitely combat the crisis of ready stocks. The only challenges we are facing that is in terms of commercial project. जितना हम लोग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जितना लॉन्च हो रहा है, जितना उभर के आ रहा है, उतना कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से उतना प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहा है. बट रिसेंट सुनने को जो आ रहा है दैट दो मेनी प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो ऑन द वे. सो आई एम श्योर बोथ द कमर्शियल एज वेल एज residential that will give a extra mileage to the real estate that is industry in coming future. That is the news sections for this episode today. Thank you so much, sir. Moving ahead with the hot properties for today's episode, so please. हॉट प्रॉपर्टी में इस टाइम भी हम लोग बहुत चुन के अलग अलग से प्रॉपर्टी लेके आए हैं. चलिए शुरू करते हैं. एक रेडी टू मूव फ्लैट्स है. ये रौतखोला में है. वेरी एमिनेंट दैट इज लोकेलिटी इन सिलीगुड़ी, रौतखोला, वेरी डिमांडिंग लोकेलिटी. द फ्लैट इज इन थर्ड फ्लोर. इट इज वेरी दैट इज वेल मैनेज फ्लैट. 1025 स्क्वायर फीट फ्लैट का साइज है. इट इज़ अ फ्रंट फेसिंग, रेडी टू मूव है एकदम. ज़्यादा जानकारी के लिए, प्राइस वगैरह ज़्यादा जानकारी के लिए आपको 99-330-2222 इस नंबर पर फ़ोन करना होगा या जीएफएस रियल्टर से कनेक्ट करना होगा आपको.
Recent past, we have witnessed in fair also in Sikkim, in that is Namchi, as well as in other parts of Siliguri. अभी जो आ रहा है हॉट प्रॉपर्टी के बारे में सबसे ज़्यादा इंक्वायरी जा रहा है लैंड का, तो हम लोग आज एक अच्छा लैंड का बारे में जानकारी देंगे. इसका नाम है हिलकेस विला. यह है रानीडांगा में नियर कैंसर हॉस्पिटल. इसमें 3, 4, 5, 6 कट्ठा का लैंड मिल जाएगा. दिस इज़ वेल डेवलप्ड, इनसाइड रोड, ड्रेनेज वगैरह सब कुछ दिया हुआ है. इज नॉर्थ फेसिंग, देयर इज़ वेरी मच वास्तु कंप्लाइंट प्लॉट है. प्रीमियम लोकेशन तो है ही, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है सिलीगुड़ी से. ज़्यादा जानकारी के लिए आपको वही नंबर पे डायल करना होगा 9933022222 या GFS रियल्टर्स को कनेक्ट करना होगा. बट जिन्होंने सोचा है इन्वेस्ट करने के लिए, दिस इज़ द राइट प्लेस टू इन्वेस्ट, बिकॉज एप्रिसिएशन उन लोगों का बहुत ज़्यादा मिल जाएगा इन रिसेंट फ्यूचर. अभी तक ये उतना ज़्यादा प्राइस नहीं है, क्योंकि जगह अभी डेवलप्ड हो रहा है. जैसे एक साल में डेवलप्ड हो जाएगा, the viewers can expect double appreciations of their investment amount. So investment के लिए भी ये खासियत है. और जिन्होंने रेसिडेंशियल वहाँ पे रिसाइड करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं वहाँ पे, तो ये लोग भी वहाँ पे जाके घर बना सकते हैं. दिस इज़ वेरी गुड प्रॉपर्टी इन लैंड पॉइंट ऑफ व्यू. और सर, अगर हम बात करें रेंटल प्रॉपर्टीज़ की, तो रेसिडेंशियल रेंटल में कोई प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है एट द मोमेंट? बहुत अच्छा प्रॉपर्टी आया है, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर बोथ में. इस्कॉन रोड का बगल में ही है. वेरी प्रोमिनेंट प्लेस इन सिलीगुड़ी. बोथ द फ्लैट्स आर इन 2 BHK, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, सो वास्तु कंप्लाइंट है. फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, सो दिस इज़ वेरी डिजायरेबल, दैट इज़ पोजीशन ऑफ द फ्लैट. सबसे ज़्यादा खासियत यही है, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर में है. प्रीमियम लोकेशन तो है ही. और रेंट अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बहुत कमती रेंट में है. ये 15,000 रुपीज़ है रेंट 2 BHK का उस मोहल्ले में. 15,000 रेंट इज़ वेरी मच इकोनॉमिकल विद इन द रीच ऑफ अ पर्टिकुलर दैट इज़ रेसिडेंशियल एरिया. और ज़्यादा जानकारी के लिए वही नंबर पर डायल कीजिए 9933022222 या GFS रियल्टर्स. और सर, हमारे व्यूअर्स में से बहुत जनों को कमर्शियल रेंटल प्रॉपर्टीज़ की भी तलाश है. सो फॉर दैट डू वी हैव एनीथिंग एट द मोमेंट? बहुत बढ़िया एक शॉप हम लेके आए हैं. ये है यूनिवर्स बिल्डिंग में, शिवॉक रोड में. वेरी प्रोमिनेंट प्लेस. रेंट में है, छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है. बिकॉज रिसेंट पास वी हैव ऑल्सो विटनेस छोटा छोटा दुकान का डिमांड अभी ज़्यादा हो रहा है, तो उसी हिसाब से हम लोग ये चुन के लेकर आए हैं. दिस इज़ 342 स्क्वायर फीट का एक शॉप है. ये रेडी टू मूव है. सेल के लिए ये 23 lakhs का है. अगर रेंट पे कोई लेना चाहते हैं तो ये 20,000 रेंट में इसको मिल सकता है. और ज़्यादा जानकारी के लिए 9933022222 में आपको फ़ोन कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड्स हॉट प्रॉपर्टी सेक्शंस. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच. तो अब तक आपने देखा प्रॉपर्टी शो में न्यूज सेक्शन, और हर बार की तरह इस बार हम आपको विशेष परिचर्चा में लेकर आ रहे हैं. और आज की जो विशेष चर्चा होगी वह है आगामी दिनों 30 जनवरी को सिलीगुड़ी में होने जा रहे रियल एस्टेट के एक बड़े सभा की, या यूं कहें एक बड़ी परिचर्चा का आयोजन किया गया है. और इस परिचर्चा का आयोजन किया गया है एरिया सिलीगुड़ी की ओर से. इसका नाम है रियल टच 21. स्लोगन है, इसका टैगलाइन है, बहुत ही बेहतरीन टैगलाइन रखा हुआ है, दिल से दिल तक. और इस रियल एस्टेट के कार्यक्रम में पूरे देश भर के रियल एस्टेट के बड़े से बड़े दिग्गज शामिल हो रहे हैं, शुमार हो रहे हैं. उनका क्या उद्देश्य है, इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, और यह कितने दिनों का कार्यक्रम होगा, और इसमें कौन कौन इनके साथ जुड़े हुए हैं. तो मैं बता दूं, मेरे साथ बैठे हुए हैं रोबिन मित्रुका, जो कि नार इंडिया के PR चेयरमैन हैं, और साथ ही प्रेसिडेंट हैं एरिया सिलीगुड़ी के. तो रोबिन मित्रुका जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में. और हमारे साथ हैं सोमनाथ सरकार, जो कि इस पूरे इवेंट के चेयरमैन हैं. सोमनाथ जी, आपका भी स्वागत है. और अंतिम जो मेहमान है हमारे साथ, उत्तम साहनी, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है एरिया के. नमस्कार जी. तो हमने दर्शकों को बताया कि रियल टच दिल से दिल तक का जो आप लोगों ने आयोजन किया है 30 जनवरी को जो होने जा रहा है, 30 और 31 जनवरी 2 दिन का कार्यक्रम है. इस कार्यक्रम में मैंने सुना है कि पूरे देश भर से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जो रियल एस्टेट के एक चेहरे हैं.
जो इस पूरे कार्यक्रम को अपने जो विचार है उनसे ओतप्रोत करेंगे और लोगों से बात भी करेंगे। तो मैंने सुना है इसमें हर्षवर्धन नेवटिया है और भी कई बड़े बड़े नाम हैं। तो इस कार्यक्रम का ये पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, मुझे ये भी सुनने में आया। तो ऐसे कार्यक्रम का करने के पीछे आप लोगों का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं खबर समय का धन्यवाद देता हूं कि खबर समय ने हमें अपना समय दिया। और पहले तो मैं आपको बता दूं कि एरिया सिलीगुड़ी जो है ये एक रियल एस्टेट का सिलीगुड़ी का एक लोकल एसोसिएशन है जो कि रियल एस्टेट्स के हित में काम करती है। और ये हम इसके साथ में NAR इंडिया के साथ भी जुड़े हुए हैं। NAR इंडिया ये एसोसिएशन ऑफ द एसोसिएशंस है, उसके माध्यम से सिलीगुड़ी में ये पहला बार ये कार्यक्रम हो रहा है रियल टच 2021, जो कि पूरे ईस्टर्न इंडिया के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा एक मिनी कन्वेंशन टाइप का प्रोग्राम है, जिसमें ये कन्वेंशन हमने बेसिकली डेवलपर्स और रियल्टर्स पूरे इंडिया के लिए हमने किया है। और इसमें जैसा आपने बताया कि बड़े बड़े दिग्गज लोग आ रहे हैं, तो इसमें हर्षवर्धन जी के साथ क्रेडे के भी काफी नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास रहेंगे। NAR इंडिया के काफी प्रेसिडेंट और सारे पूरे इंडिया से जो भी एसोसिएशन है उसके लोग भी यहाँ रहेंगे। ये बेसिकली प्रोग्राम जो है अपना इंटरेक्शन और अपना नेटवर्किंग सेशन है। और जैसे कि इसका जो नाम दिया गया रियल टच 2021, जैसे हमने देखा कि कोविड का समय था 2020 का, उसमें हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, दूसरे दूर थे। तो आज कम से कम एक हमें इसी बहाने एक मिलने का और नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा। और उत्तर बंगाल जैसे कि उभरता हुआ एक शहर है और यहाँ पर काफी तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो उसी के बेस पर हमने एक डेवलपर्स और रियल्टर्स मीट किया है, जिसमें क्रेडाई नॉर्थ बंगाल भी हमारा साथ दे रही है। और हमें क्रेडाई नॉर्थ बंगाल का भी भरपूर इसमें सहयोग मिल रहा है। और इस प्रोग्राम के द्वारा हम कम से कम लोगों को ये बता पाए कि यहाँ पर इतना स्कोप है काम करने के लिए, यहाँ पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेकर हम इतने आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जो टर्नओवर है रियल एस्टेट में बहुत बड़ा है। एक जैसे कि दूसरे व्यवसाय में हम देखते हैं उसी तरह से रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा सेगमेंट यहाँ करोड़ों में प्ले करता है। तो उसको हमें आगे बढ़ाने के लिए हमने इस कार्यक्रम का बेसिकली ऑर्गेनाइज किया है। धन्यवाद रूबेन जी, आपने कार्यक्रम के बारे में एक संक्षिप्त विवरण हमें दिया। सोमनाथ सरकार जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस इवेंट में कितने लोग आ रहे हैं, लगभग कितने लोग आएंगे? अप्रोक्सीमेट हम लोग 200 लोगों का नेशनल लीडर्स जो डेवलपर सेक्टर से है और रियल्टर सेक्टर से है, अप्रोक्सीमेट 200 लोगों का आयोजन किए हैं। और इस प्रोग्राम में हम लोग कोविड का हर एक गाइडलाइंस फॉलो करते हुए इसका आयोजन किए शुरुआत से। और इस प्रोग्राम का नाम रखा है रियल्टर्स 21। टैगलाइन है दिल से दिल तक। ये जो रियल्टर्स एंड डेवलपर्स का जो मेल बंधन है, दिल से दिल तक एक दूसरे को छू जाए, यही परिकल्पना लेके आगे आ रहे। साथ में एक नेशनल इवेंट है और सिलीगुड़ी में आयोजित किया गया है। ये हम लोगों का गर्व का विषय है। ये फर्स्ट टाइम सिलीगुड़ी में इतना बड़ा नेशनल इवेंट का हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए है इसको निभाने का। तो ये हम लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। सिलीगुड़ी रियल एस्टेट सेगमेंट के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। सारा इंडिया से सिलीगुड़ी का रियल एस्टेट के बारे में जानेगा, सिलीगुड़ी के बारे में जानेगा, नया नया इन्वेस्टमेंट आने का अपॉर्चुनिटी है। और सिलीगुड़ी का भी जितने रियल एस्टेट फैटर्निटी में जो काम करते हैं, इन लोगों को भी ऑल ओवर इंडिया में काम करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये हम लोग के लिए सचमुच का गर्व का बात है। तो ये इवेंट रखे 30 जनवरी को मेफेयर टी रिसोर्ट में। हम सब रियल एस्टेट प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट करते हैं आप भरपूर मात्रा में आइए, इसको इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिए, इसका शोभा बढ़ाइए और रियल एस्टेट सेगमेंट को सिलीगुड़ी में आगे और भी आगे ले जाए। तो इसमें क्या सभी कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है क्या? रियल एस्टेट से प्रोफेशनल रिलेटेड कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है? आप जस्ट एक रजिस्ट्रेशन 7,500 रुपया जस्ट रजिस्ट्रेशन रखे हैं और डेवलपर्स हो या रियल्टर्स हो कोई भी कर सकते हैं, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। तो इसमें रूबेन जी फिर मैं एक बार पूछूंगा कि इसमें जैसे जो इन्होंने बताया रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है, तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या कहीं से भी या पूरे देश भर से आप लोगों के पास? देश भर से हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। और ये जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है ये बेसिकली जो खर्चा हमारा लग रहा है वही हम ले रहे हैं। और इसमें दूसरे दिन भी हम इसमें मेरिक का भी एक सेशन हमने रखा है, जिसमें एक्सकर्शन का जो प्रोग्राम है उसमें हम सुबह उनको मेरिक ले जा रहे हैं। शाम को भी हमारा यहाँ उड़ान हो रहा
जनरल में नेटवर्किंग का प्रोग्राम भी है। तो ये एक बेसिकली 2 दिन का प्रोग्राम है, क्योंकि लोग काफी पूरे देश से आ रहे हैं, तो उनको भी एक है कि भाई दार्जिलिंग घूमना है या मेरी घूमना है, और उन लोग ईस्ट को लेकर काफी उत्साहित है। तो यहाँ पर जब आएंगे तो हम लोग ने इसीलिए रखा है क्योंकि डेवलपर्स और रियल्टर जब साथ में रहेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे एक दूसरे की जो भी बात है, जो भी चीज है। तो आज ईस्टर्न इंडिया, आज NER इंडिया में भी हमने देखा है कि ईस्ट इंडिया को लेकर अब वहां पर भी लोग चर्चित में आ गए, क्योंकि सिलीगुड़ी कहीं ना कहीं लुप्त हो रखा था एक बार पूरे भारत में जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। बट अब एक टाइम एक ऐसा आ रहा है कि पूरे इंडिया में रियल एस्टेट से लोग, क्योंकि रियल एस्टेट सबसे बड़ा गोल्ड से भी बड़ा इन्वेस्टमेंट है आज के दिन देखा जाए तो, और रियल एस्टेट के ऊपर में अगर अपने फोकस करें तो आज कोई भी जगह देख लीजिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है पूरे सेगमेंट में। तो उसको लेकर बेसिकली हमने इसको रखा कि आप कम से कम एक दूसरे को जब जानोगे, और जैसे सोमनाथ ने बताया कि इंडस्ट्री को मतलब पूरे इंडिया में काम करने का सबको मौका मिलेगा। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी गुवाहाटी, झारखंड, उड़ीसा, भुवनेश्वर, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, हर बैंगलोर, हर जगह से लोग आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। प्लस डेवलपर्स का जो है आपके कलकत्ता से जो भी है, हम हर्षवर्धन जी भी है, और भी काफी डेवलपर्स है जो कि बॉम्बे से भी आ रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ का एक मार्केट टेस्ट और बॉम्बे का मार्केट टेस्ट अलग है, बट वो भी एक समझने का, पूरा इंडिया का टेस्ट समझने का अपने को उस दिन एक मौका मिलेगा। तो इस तरह के कार्यक्रम, ऐसा जो ये रियल टच जो आपका कार्यक्रम है, ऐसा कार्यक्रम क्या देश में कहीं और हुआ है इससे पहले रियल टच 2020 बोल के हुआ करता था। अभी ये क्या है कि कुछ अपग्रेडेशन हमने इसको किया है, और इसको रियल टच 2021 के नाम से हमने दिया, और बहुत बड़ा एक सेगमेंट है। प्लस इसमें क्या है कि NIR इंडिया के जो भी प्रेसिडेंट है, कमिंग 3 इयर्स के जो भी प्रेसिडेंट है, तीनों रहेंगे यहाँ पर। और रियल टच 2021 ये एक मिनी कन्वेंशन फॉर द ईस्टर्न इंडिया है। बेसिकली ईस्टर्न इंडिया आज 5 स्टेट को मिलाकर होता है, गुवाहाटी, उड़ीसा, कलकत्ता, सिलीगुड़ी और झारखंड। तो ये एक ईस्ट पार्ट है। ईस्ट पार्ट में हम लोगों ने बेसिकली इसको फोकस किया है, क्योंकि यहाँ से ही ज्यादा काम मिलता है। अभी जो मार्केट में ट्रेंड देखा जा रहा है, वेयर हाउसिंग सबसे ज्यादा लेटेस्ट ट्रेंड में है। लॉजिस्टिक, जिसके ऊपर आज लाखों स्क्वायर फीट यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है। प्लस उसके साथ में रेसिडेंशियल के ऊपर भी काफी वर्कआउट हो रहा है। आज 11 तल्ले की बिल्डिंग सिलीगुड़ी में आना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो उसके ऊपर में क्या है कि और किस तरह से मार्केट को ग्रो किया जाए, उसके ऊपर एरिया का हमेशा फोकस रहा है। और रियल्टर्स के हित में, मतलब आज कोई भी काम आज जैसे ब्रोकर्स करते हैं, तो ब्रोकर्स का भी उसमें यह है कि एक अहम भूमिका रहती है, क्योंकि आज डेवलपर्स अकेला माल बना सकते हैं, पर बिक्री जो भी है वो रियल्टर्स ही करते हैं, ब्रोकर ही करते हैं। तो ये एक मौका रियल्टर को भी मिल रहा है कि आप उनसे जुड़े, बिल्डर्स के साथ कनेक्ट जब तक आप नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हमारे साथ उत्तम साहनी जी भी है, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है एरिया के। कितना उत्साहित है आप, मतलब आपको क्या लग रहा है कि इससे कितना बेनिफिट मिलेगा? आपके जो सेक्टर के जो लोग हैं उनको कितना ज्ञान प्राप्त होगा, या कितनी ज्यादा सुविधा मिलेगी अगर नेशनल चेहरे कुछ आ रहे हैं इसमें? जैसे कई कोई और शहर में, जैसे दिल्ली में, मुंबई, हैदराबाद में कन्वेंशन होते हैं, तो हम लोग भी वहां पे जाते हैं। तो ऑल ओवर द इंडिया से हम लोग को इनवाइट किया जाता है। तो इस बार हम लोग के लिए एक मौका है कि हम लोग भी सिलीगुड़ी में सबको इनवाइट कर सके, हमारे तरफ से भी कुछ हॉस्पिटैलिटी हम लोग को रख सके। तो मन में उत्साह तो है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग आएंगे यहाँ पे, और सब नेशनल डेलीगेट्स रहेंगे, हमारे चेयरमैन, प्रेसिडेंट साहब। तो और लोकेशन भी हम लोग ऐसे जगह में हम लोग कर रहे हैं, मेक टी रिसोर्ट, जो कि एकदम नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। और नेक्स्ट डे हम लोग मिरिक का टूर कर रहे हैं। तो वो लोग को भी सिलीगुड़ी आने के बाद सिलीगुड़ी का जो माहौल है, वातावरण है, उसके वो उन लोगों को देखने का एक मौका मिलेगा। माने उनको आप, ये जो डेलीगेट्स जो लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, उनको आप एक सुखद एहसास देकर भेजना चाह रहे हैं, ताकि और इन्वेस्टर सिलीगुड़ी की तरफ कूच करें, मतलब रियल एस्टेट के मार्केट में और थोड़ा बूम आए। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात हम चलाते हैं, इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य रियल एस्टेट का जो सेक्टर है, इसके अंदर जो एक नया उछाल आया है, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यह एक बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं हम
क्योंकि रियल टच 21 जो कार्यक्रम है एक बड़ा और बहुत बृहद रूप से मनाया जा रहा प्रथम बार का ऐसा कार्यक्रम है जिसको देखा जा सकता है, क्योंकि और सेक्टर में बहुत सारे बड़े बड़े कन्वेंशन हुए हैं, लेकिन रियल टच 2020 रोबिन जी, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो ये शायद पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है। कोविड के पीरियड में इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा पहला कार्यक्रम है ये, ईस्ट इंडिया में हमने पहली बार लिया है। हमारे मतलब ये माने कि रियल एस्टेट जो है सिलीगुड़ी का, माने उत्तर बंगाल का, वो काफी महत्वपूर्ण बन चुका है, महत्वपूर्ण बन चुका है। बिल्कुल 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 संजय जी। और इसमें हमारे कैलकाटा से भी जो रेका प्रेसिडेंट है महेश सोमानी जी, अनूप दादमिया जी, और उड़ीसा से अपने संतोष भाई, और फिर अपने यहाँ झारखंड से पवन जी, उसके बाद ईस्ट इंडिया से गुवाहाटी से अपने ईस्ट इंडिया शैलेश बैठी जी, बाकी सभी का भी इसमें आगमन हो रहा है, क्योंकि ईस्ट इंडिया को लेकर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं इधर। और नेशनल के सुमंत रेड्डी जी जो अभी नेशनल प्रेसिडेंट है, उसके साथ तरुण भाटिया, समीर अरोड़ा, और भी जो भी रवि वर्मा सर जो चेयरमैन है एनआर इंडिया के, सभी इसमें आ रहे हैं प्रोग्राम में। तो क्या आपकी मतलब अगर आप, जैसे आप इवेंट चेयरमैन हैं, मेंबर भी है इसके, तो क्या प्रोटोकॉल जो आप बोल रहे थे, कोविड के प्रोटोकॉल तो है ही, उनके साथ और रहने की और ये सब की क्या व्यवस्था की जा रही है आप लोग यहाँ? एक्चुअली काफी लोग मेफेयर में ही रह रहे, कोई आदर्श सारी व्यवस्था आप लोग आपके द्वारा की जा रही है कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग सबसे उत्साहित इसलिए है कि सिलीगुड़ी में जो इन्वेस्टमेंट आने का अपॉर्चुनिटी है, सबका काम बढ़ोतरी का अपॉर्चुनिटी है, इसमें हम लोग सबसे ज्यादा उत्साहित है। और सारा इंडिया के साथ जो सिलीगुड़ी का रियल एस्टेट का रिलेशनशिप ब्रांडिंग होगा, ये पहले कोई कर नहीं पाया, पहले कभी नहीं हुआ। ये हम लोगों के लिए सबसे उत्साह जुगाड़ने वाला चीज है। तो ऐसे भी कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन आ रहे हैं क्या कि वो लोग मतलब साइट वगैरह, लोकेशन वगैरह देखना चाह रहे हैं सब? इसके साथ साथ कुछ इंक्वायरी जनरेट हो रहा है, ये सिलीगुड़ी में इस तरह से हो रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट का अगर मौका मिले, इस तरह से बाहर से आ रहे हैं काफी जो लोग डेवलपर लोग पहले सिलीगुड़ी की तरफ देखे नहीं बाहर का इन्वेस्टमेंट, वो लोग सिलीगुड़ी के बारे में थोड़ी इंक्वायरी कर रहा है। और हम लोग के साथ इस इवेंट में आने के बाद सिलीगुड़ी के बारे में और भी ज्यादा जानेगा, ज्यादा वे खुल जाएगा सिलीगुड़ी के लिए। ऐसे सिलीगुड़ी का जियोग्राफी लोकेशन तो बहुत बढ़िया है, मतलब इसको नेशनल लेवल में कभी प्रेजेंट किया नहीं गया, तो हम लोग फर्स्ट टाइम इसको नेशनल लेवल में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ जान पहचान ज्यादा होगा, सिलीगुड़ी का विकास में काफी मददगार साबित होगा हम लोग का ये इवेंट। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि रियल एस्टेट का एक महाकुंभ भी इसे हम कह सकते हैं, जिसमें पूरे देश भर से लोग आकर सम्मिलित होंगे और इसमें रियल एस्टेट के बारे में आदान प्रदान होंगे, विचारों के आदान प्रदान होंगे। एक नई जो एक्सपोजर है रियल एस्टेट के मार्केट को सिलीगुड़ी के, उसको एक नया एक्सपोजर मिलेगा। रोबिन जी, सिलीगुड़ी के भी ना संजय जी, इसमें द्वारिका ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है, दीपक जी हैं, और भी इसमें सिद्धि ग्रुप है, और जो बड़े बड़े ग्रुप्स है इसमें यहाँ पर, जैसे बेगराज ग्रुप है, चाहे अपने पंचनई ग्रुप है, चाहे इसमें अपने मनोकामना ग्रुप है, एमबी ग्रुप है, उस तरह से अपने पास में और भी काफी ग्रुप्स है जो इसमें अपने साथ एसोसिएटेड हो रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी जगह अपने को मिलेगी। एसबीएम ग्रुप, काफी ग्रुप्स है इसमें, जो कि सिलीगुड़ी में जो भी ग्रुप्स है सभी हमारे साथ एसोसिएट हुई है कढ़ाई नॉर्थ बंगाल के रिलेटेड। तो अपने को सबको एक मौका मिलेगा कि एक प्लेटफॉर्म पर आके काम कर पाए, तो ये एक अपने लिए बहुत बड़ी बात है। इसमें और जैसे कुछ जो दुविधाएं हैं, जो समस्याएं हैं रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में, उनसे संबंधित भी कुछ समाधान की ऊपर बातचीत। इसमें हम लोग मंत्री साहब गौतम देव जी को भी हम लोग इनवाइट करने की अभी लगे हुए हैं उसमें भी, और भी हाउसिंग मिनिस्टर से भी हमारी बात चल रही है। तो इसमें जब कढ़ाई भी रहेगी और रियल्टर्स भी रहेंगे, तो क्या है कि कहीं ना कहीं आज जो भी एक कभी लाइसेंस को लेकर इश्यूज हो जाता है, कभी बिल्डर्स को कोई चीज को, लेबर्स को लेकर इशू है, जो भी इश्यूज है उसको लेकर भी यहाँ पर एक परिचर्चा हमने रखा है शाम के समय, जो हमारा 4th सेशन है प्रोग्राम के दिन, उसमें हम डिस्कस करेंगे, और जो भी डायरेक्ट मिनिस्ट्री लेवल से जो भी बात हो पाएगी उसको भी हम चाहेंगे कि उसका एक समाधान निकले। तो सोमनाथ जी, मैं आखिर दौर में आपसे बस इतना पूछना चाहूंगा कि आप अगर हमारे दर्शकों को हमारे माध्यम से आपको अपील करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, तो आप कर सकते हैं। एक्चुअली मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हम लोगों का इस इवेंट में ज्यादा से ज्यादा रियल एस्टेट से जुड़े डेवलपर्स, रियल्टर्स ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट कीजिए, और हम लोगों का
जितने सोशल मीडिया पार्टनर्स एंड अदर्स डेलिकेट्स जो हो, जिस तरह से हम लोग का माध्यम से हम लोग का इंफॉर्मेशन, इस इवेंट का जितने भी मैसेज है वो टेलीकास्ट किया जाएगा। आप लोग इसको फॉलो कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए। माने दसवों सोमनाथ जी का कहना है कि आप इस कार्यक्रम के बारे में जो भी इनपुट्स रहे वो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनके एरिया के जो फेसबुक पेज है उसके द्वारा भी आप जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इससे आपको भी पता चलेगा कि रियल एस्टेट के सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं, क्या क्या नए यहाँ आने वाले हैं विचार, या फिर इनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो नए आने वाले हैं, उनके बारे में आपको पता चलेगा। तो रोबिन जी, मैं चलते चलते आखिर आपसे भी कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसा है कि आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, पहले तो क्या है कि हमारे पास कैलकाटा से भी पहली बार बिल्डर्स जुड़ रहे हैं इसमें। टाटा है, मर्लिन है, काफी बिल्डर्स हमारे साथ कैलकाटा से भी जुड़ रहे हैं। तो उन लोग का भी यहाँ पर प्रेजेंटेशन ये सब रहेगा। तो सिलीगुड़ी के जितने भी रियल्टर्स हैं या जो भी डेवलपर्स हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब उनके साथ साझगांठ करके काम को आगे बढ़ा सके। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है कि आप लोग सभी आइए। और ये आपका प्रोग्राम है रियल टच 2021 और ये आपको सक्सेस करना है। हम सभी मीडिया के भी लोगों को भी बुलाना चाहेंगे इसमें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और ये एक इतना बड़ा शोकेस है कि अपने सिलीगुड़ी को कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं एक रूप दे सकते हैं। तो आप सभी से मैं एज अ प्रेसिडेंट और चेयरमैन एनईआर इंडिया के हिसाब से बुलाना चाहूंगा, पीआर चेयरमैन, कि आप सभी आए और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। धन्यवाद रोबिन जी। और दर्शकों, आपने सुना रियल टच 21 जिसका आयोजन 30 और 31 जनवरी को सिलीगुड़ी में हो रहा है। सिलीगुड़ी मेफेयर रिसोर्ट में इसका आयोजन किया गया है और इसमें देश भर के जो रियल एस्टेट क्षेत्र के लोग हैं वह भागीदारी अपना पार्ट ले रहे हैं। और इसमें काफी चीजों की डिस्कशन होगी, चाहे वह नेटवर्किंग हो या इसमें माने कई इंटरेक्टिव सेशन भी होंगे जिसमें यहाँ के जो रियल एस्टेट के लोग हैं उनको भी एक नई नई जानकारियां प्राप्त होगी। और उससे अगर हम बात करें कि साधारण लोगों को क्या फायदा मिलेगा, तो उससे यह फायदा मिलेगा कि जो अनुभव है वह बढ़ेगा। रियल एस्टेट के क्षेत्र में जो क्वालिटी है वह इंप्रूव होगी और बहुत सारी हमें फैसिलिटी जो मेट्रो सिटीज में या बड़े जगहों पर हमें उपलब्ध होती है वह भी हमें यहाँ मिलेगी। तो इसी के साथ हम लेंगे विदा और आप यूं ही देखते रहिए हर समय खबर समय। फिर अगले सप्ताह हम किसी और विषय पर बात करने के लिए लेकर आएंगे नए मेहमानों को। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। आप देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।